जी मैम, आपको मज़ा आ रहा है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। पर मुझे लग रहा है हमारे पेरेंट्स में एनर्जी थोड़ी कम है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एनर्जी तो बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रही है। आपकी तालियों की जी हाँ, हम इसी तालियों का वेट कर रहे हैं। यही फिर से जोश एक बार। चाहिए हमें। यही जोश चाहिए हमें हमारी एनर्जी के लिए और हमारे बच्चों के लिए। ज़ोरदार तालियाँ हमारे नन्हे-मुन्ने सितारों के लिए। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ओके। सो एंटरटेनमेंट तो बहुत हुआ। एंटरटेनमेंट के बाद हमें कुछ गाइडेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज भी चाहिए होता है। After having so much fun of now, it's time to listen one of our trustee. Yes, who is really a friend, a teacher, a guide, a mentor, and philosopher. In simple word, I would call him a person of gem. He is None other than Mr. Praveen Patel. A big round of applause for our sir. Sir, please come on the stage and bless us with your the special auspicious words. I don't have to say you much more about him. He is a word would describe him better than me. Yes, he is the person with the complete personality. He is seriously a perfect person who always guides us in each and every section of our life. So, let all welcome Mr. Praveen Patel with a big round of applause. Give a big round of applause for our Mr. Praveen Patel. Am I audible there? सुन पा रहे हो आप सब मुझे? ओके, थैंक यू। भाई लाइट्स ऑन कीजिए। हाँ, ऑडियंस पर लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज़। या आई वांट टू सी ऑल ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, welcome to all of you in this auspicious ceremony of the annual function of Kautilya International School. I would like to thank all of you, all the parents, for coming over here, but a little bit displeased with the vacant seats. Why? We, the school, have planned to accommodate personal seats to all the parents whom we have invited. But these vacant seats show the absence of the parents. So I'm sorry to say they might have some important reason, otherwise they would not have lost the chance, missed the chance to appreciate the children, those who are ours. So it's a pride for all of us, for you as well as for the school. It's a pride to see the children performing in such a big stage and amazing us with their skills. Our duty is only to appreciate and inspire them. हमें उनको appreciate करना है and inspire करना है, so that they try to do big things in the coming years. It is said, well begun is half so done. जिसकी शुरुआत अच्छी है तो मानो आधा काम तो हो गया। तो जब बच्चे यहाँ स्टेज पे कुछ शुरुआत करते हैं और वो भी अच्छे से, तो they have got something and they have reached to the half of the way. And by doing so, their confidence is boosted. This small beginning will play a vital role in their life. ये जो छोटी सी शुरुआत है वो ये बच्चों की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्यों?
कि यहीं से फ्रॉम हियर ओनली they will get the confidence, because they will have to say the bigger, the larger and the more prestigious stages in the coming years. आने वाले वर्षों में इन बच्चों को इससे भी बड़े स्टेज शेयर करने हैं, उनको उनकी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो एक छोटी सी शुरुआत इनके लिए बहुत अच्छी है। क्यों? It will develop confidence. Along with, it will impart discipline among them. They will understand that any good thing can be done with cooperation. कि सहकार के बिना कोई अच्छी चीज की जा नहीं सकती। हम जितना अच्छा काम करना चाहते हैं, इतना अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। वो हमें सिखा रहे हैं कि पेरेंट्स और स्कूल साथ में मिलके कुछ करोगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे, और वो करके दिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द फिलोसॉफी ऑफ M.K. Gandhi, Gandhian philosophy, preaching by practicing. First of all, they show us on the stage by performing, and preach us work with cooperation, and it will have a very good effect. वो हमें बताते हैं कि आप सब साथ मिलके, स्कूल और पेरेंट्स साथ मिलके प्रयत्न कीजिए हमारे लिए, और उसका बढ़िया असर मिलेगा, हमारे लिए कुछ आप बढ़िया कर पाओगे। This thing will also shape character of the students, because ultimate goal of the education, as the experts and philosophers and great thinkers have said, जो महानुभावों ने बताया है कि भाई एजुकेशन का सही मोटिव क्या है, एजुकेशन क्यों देना है? नॉट फॉर द जॉब, नॉट फॉर द सर्विस, नॉट फॉर द प्रोफेशन, वो भी कमा लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, but for the shaping the character, क्योंकि आने वाला जो कल है वो और भी चैलेंजिंग होने वाला है। We can understand that the coming years will come with new challenges, and we have to prepare these children for the coming years. So we should teach them to face challenges. And what is success? If I go to the definition of success, success is not to do the big things, but to do the things with the best possible manner. जो चीज हम करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, छोटा या बड़ा, जो भी प्रोफेशन करते हैं उसको अच्छे से तरीके से किया जाए, that is called success. Every person should be successful in his profession, in his job, in his work. As these children are doing, they are trying their best and they are performing in the best possible manner. If we compare them with the reality shows, यदि हम ये बच्चों को रियलिटी शो के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा. But this is for the first time of them. And if we evaluate them with their capacities, then it's a great thing, it's a best thing, and they are very successful. हम उनकी क्षमता को देख के, उनकी उम्र को देख के, उनकी ट्रेनिंग को देख के यदि हम उनको इवेल्युएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, they are successful. Our duty together is to do the same thing, कि उनको बड़ी चीजें करने के लिए इंस्पायर करना है. It is the duty of a school and we are trying our best. But for that, we require your cooperation. कभी कभी मुझे टीचर्स और हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनसे सुनने को मिलता है कि सर पेरेंट्स का उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता जितना चाहिए. मिलता तो है, बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा भी नहीं, पर उतना नहीं मिलता
जितना मिलना चाहिए और अच्छा कोऑपरेशन पेरेंट्स को मिले तो हम कुछ और भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो आज के दिन मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है, आप तो यहाँ अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आए हो, तो थैंक्स फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक because you have spared your precious time, because we are arranging this, thank you, we are arranging this program on a working day. It also has a reason, because accommodation of the hall was not there, so we have to arrange it on a working day, and we wanted to do as early as possible so that we can focus on the academics once again. Let's remember late President of India Dr. APJ Abdul Kalam. उन्होंने कहा कि yours are the hands that will reap, dreams that we show while you sleep. कलाम साहब ने कहा था कि बच्चों, आपके ही ये हाथ है जो हमारे सपनों को साकार करेंगे जब हम सो जाएंगे मतलब चैन की नींद। हम जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो होनी है, आज नहीं तो कल सभी के लिए, इट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। एंड तो जब हम नहीं रहेंगे तब यही बच्चे हैं जो हमारे सपने साकार करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें आज उनको बल देना है, एंड यू आर प्रेजेंट हियर टू गिव देम दैट स्ट्रेंथ। इट्स अप्रिशिएबल फ्रॉम ourselves. One thing I request and expect from you, एक चीज मैं आपसे मांगूंगा आज के दिन, और वो है पॉजिटिविटी। आप टीचर्स के प्रति, स्कूल के प्रति, इवन सिस्टम जो अपनी गवर्नमेंट सिस्टम है उसके प्रति और लोगों के प्रति बच्चों में पॉजिटिविटी डालिए। Don't talk negatively in the presence of children. यदि आप बच्चे के सामने टीचर्स के लिए कुछ बोलेंगे, maybe your reason is correct, is right, but we expect that you just appreciate us in public and criticize us in private. यदि आप स्कूल के प्रति कुछ अच्छा कहना चाहते हैं वो सभी के सामने कहिए, पर यदि आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है और उसका सुझाव देना चाहते हैं, तो आइए, आवर अथॉरिटीज आर देयर टू लिसन यू पेशेंटली, बट कम विद द पेशेंस। शांति से आइए, आप अपनी बात अच्छे से, शांति से, टाइम लेके रखिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन लेट यू नो व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट नॉट। क्योंकि आप जब आएंगे, आप बताएंगे, तो जो बात आपके लिए अच्छी है, पॉसिबल है, वो औरों के लिए न भी हो। और वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द पेरेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन, एंड अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक सिस्टम एंड द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है। जब पेरेंट्स छोटे बच्चों के बारे में आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स आते बताते कि टीचर ने मेरे बच्चे को डांटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, इसके लिए भेजते हैं हम, फीस इसके लिए पे करते हैं। वही पेरेंट्स 5, 7, 10 साल बाद आते हैं, बोलते हैं कि सर, टीचर, मैम, सर आप कुछ बोलिए उसको, वो हमारा तो मानता नहीं, हमारी तो सुनता नहीं। वही पेरेंट आते। दिस व्हाट आई एम सेइंग इज ड्यू टू माई एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन ओनली। मैंने अपने आप से फील किया है कि वही पेरेंट आते हैं, और जब समय निकल चुका होता है, अब टीनेजर में जाके बच्चा जब टीनेज होता है ना, तो वो अपनी सोच एक्सेप्ट करता है, वो अपने फ्रेंड से कुछ एक्सेप्ट करता है, वो आपसे या हमसे सुनता नहीं। उसके लिए उसको बचपन से ही, पहले से ही वी हैव टू इम्प्लांट द गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हमें बचपन से डालनी है। और इसके लिए हम बोलते हैं कि आप यदि कुछ अच्छा बोले
तो पब्लिक में सभी के सामने बोलिए, और कुछ बताना चाहे तो अथॉरिटीज के चैम्बर में जाके बताइए। वही चीज है, वी शुड मेक अवेयर ऑफ द डेंजर्स एंड फियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सभी अच्छा अच्छा ही बोलना है, बच्चों को जो वास्तविकता है वो नहीं बतानी, ऐसा भी नहीं। वी हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट द डेंजर्स एंड फियर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया आजकल ऐसी होती जा रही है कि बच्चों को हमें जो वास्तविकता है वो भी बतानी है, तो वो हमें बतानी है, बट इट शुड नॉट क्रिएट नेगेटिविटी इन देमसेल्व्स। वी हैव टू बी वेरी टैक्टफुल। अच्छे से ये सोच के बतानी है कि बच्चों में वो नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव सोच खड़ी न कर दे, क्योंकि ये बच्चों को यही दुनिया में, यही देश में बड़ा होना है, यही प्रोफेशन करना है, अपना जीवन निर्वाह यहीं से कमाना है, और सक्सेसफुल भी यहीं पे होना है, क्योंकि सभी तो फॉरेन जा नहीं पाएंगे और वही के द्वार तो अभी बंद होने लगे हैं। तो वाई शुड वी नॉट मेक आवर मदरलैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल। हम यूं क्यों नहीं सोचे कि अपने देश को ऐसा बनाए बच्चों के द्वारा कि हमें कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। एंड these are the children, these are the ants that will reap our dreams। यही बच्चे हैं, यही हाथ है जो हमारे सपने हैं उसको फुलफिल करेंगे, वो सही मायने में सक्सेसफुल करेंगे। तभी तो यूं ही हम नहीं कहते कि सबसे प्यारा, सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा। यूं ही बोलना नहीं है, उसको सही मायने में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा बनाना है, और ये बच्चे बना पाएंगे, और तब भी बना पाएंगे जब आप और हम मिलजुल कर ये बच्चों के लिए सोचेंगे और कुछ करेंगे। इवन इफ वी ट्राई आवर बेस्ट, हम अच्छा करना चाहे तब भी आपके सहारे के बिना, आपकी हेल्प के बिना वो अधूरा रहेगा, क्योंकि एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, दो हाथ तो चाहिए ही चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है, एक स्कूल है, तो दूसरा फैमिली है। चलो हम सब साथ मिलके एक अच्छा काम करें, ये बच्चों के भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करें। आई एक्सपेक्ट दैट थिंग ओनली। इट इज़ माई humble and modest request to you, just cooperate us. We are determined, we are quite sure to do the best for these children. Just do what I have said to you. Be positive for teachers, for school, for the world even, for the people even, and feed positivity. बच्चों में आप जो भी डालना चाहते हैं वो पॉजिटिविटी ही डालिए। बस आज के दिन और ज़्यादा समय न लेते हुए मेरी बात यहीं समाप्त करूँगा। पर इससे अच्छा ऑडियंस और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता आपसे बात करने का। That is why I have taken your precious time and thanks once again. एक बात है, पूरे समय तक यहाँ रुकिएगा, बच्चों के जो प्रोग्राम से एंजॉय कीजिएगा, उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मुझे ये खाली सीट्स दिख रही है ना, मुझे यहाँ चुभ रही है कि we have not managed, we have not planned in such a way. Still seats are vacant because some parents found it important to work than to spare some time for the betterment of the children. Okay, thank you. Thanks a lot. Namaskar.